Governments have come and gone. Valuable time has gone by in formulating various upliftment programs and policies. Crores of rupees have been spent on their supposed implementation. But a closer look at reality shows a very dismal picture. The implementation of these policies is such that the benefits remain limited to a select few. Women, who constitute nearly half of India's population, are still bound by the shackles of patriarchy. In spite of numerous constitutional amendments, women still seem to be held down by the demands of family and society. Bihar, a state in the north-central zone of India, was acknowledged as a great educational center in the ancient times. In contemporary times, however, the educational standards have dipped, with women bearing the brunt of it all. The major cause of this low female literacy rate is the patriarchal structure that remains a limiting factor in women's education. "300 kilometers away from Patna lies the small and little-known district of Purnia. More than 6 decades after the country declared its independence, the women of Purnia, especially Muslim and Dalit women, are struggling to find their identity and carve a niche for themselves." आजादी के बाद जो हमने सपना देखा था कि हम इस देश में गरीबी मिटाएंगे, हम इस देश के हर नागरिक को एक ऐसे ओहदे पे पहुंचाएंगे कि कोई उसमें ऊंच नीच ना बचे, लेकिन उस सपने को हम पूरा नहीं कर पाए। बिहार में साक्षरता का दर बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत है उसे काफी कम में है हम लोग। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है और बहुत दुख की बात है कि पूरे बिहार में महिला साक्षरता के दर में सबसे कम और हमारे पूर्णिया जिला में है। गांव के लोग ऐसे ही हैं जो लड़की को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल भी नहीं आते हैं। लड़की पैसे के चलते नहीं पढ़ाते हैं और प्लस सोचते हैं लड़कियां बाहर जाएगी, भाग जाएगी, पर्दा से बाहर हो जाएगी। यहाँ की लड़की उतनी घर से नहीं निकलती है, बाहर नहीं जाती है। अभी तो जब से अनहद में हम आए हैं तो थोड़ी बहुत लड़की को देख रहे हैं। मैं 2008 में पूर्णिया गई थी एक प्रोग्राम में बोलने के लिए। उसी बीच पूरे बिहार में बाढ़ आई थी और तकरीबन 6 महीना पूरा अनहद की टीम और बहुत और भी बाहर के लोग हम पूरा उस रिलीफ के काम में लग गए। गांव के गांव आप पूरा घूम जाए, वहाँ पे 2-3 घर मुश्किल से मिलते हैं जो ईंटों के बने होते हैं, सब फूस के घर हैं और गरीबी का ये आलम है कि तकरीबन 80-90% वहाँ के लोग लड़के नौजवान माइग्रेट करते हैं। The wet and humid climate in Purnia and Araria is the main factor behind the large jute production. The easy availability of jute makes the creation of jute products viable. 2010 saw the setting up of 2 centers in Purnia. As of today, there are 10 centers in Purnia and Araria. 5 of these centers have sewing machines, whereas the other 5 have hand looms. हम सिर्फ वहाँ लड़कियों को काटना सिलाना सीरा सिखाने नहीं गए, हम उनको एक पूरा नई दिशा भी देना चाहते हैं। जमीनी तौर पे जो काम शुरू किया वो अनहद ने किया, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर निकाल के लाना, इस तरह के समाज में जहाँ उतनी छूट नहीं है महिलाओं को। Getting the girls and the women to step over the traditionally set boundaries was not an easy task to begin with. Initial efforts have helped 120 women to become literate and gain training in the making of jute products. Presently, the training process for 250 women is underway. To sustain such progress, the women need to be ensured of a secure means of employment. All such initiatives need to be backed by determination and the will to flourish. तो वहाँ पे एक तो जूट से अलग अलग तरह के खूबसूरत बैग्स जो आपको मार्केट्स में यहाँ दिल्ली में और शहरों में दिखते हैं, एक तो उनको सिखाने की हमने ट्रेनिंग शुरू की है और फिर जूट से जो दरियां और डोर मैट्स बनते हैं उनके लिए हमने लूम्स लगाए हैं। एक मर गई जो पूरी जो चीज़ है जूट की चीज़, उसको हम दोबारा से जिंदा कर रहे हैं, दोबारा से लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं और खास करके ऐसी महिलाओं को जिन्होंने कभी बाहर का रास्ता नहीं देखा। सबसे पहले यहाँ पे दयान सर आए थे, अरुण सर, मानसी जी, वो लोग आए थे। वो बोले कि यहाँ पर हम सेंटर खोलना चाहते हैं जूट का,
यहाँ पे महिलाएं आएंगी, जूट सीखेंगी और उसको पढ़ाना है, साक्षर बनाना है। घर घर जाके सबको समझाया। उसके बाद फिर उसके पति बोलने लगे वहाँ जाएंगे, हमारे घर में है, बच्चे को कौन संभालेगा। यहाँ पर भी वैसा बोला था कि वहाँ नाच गाना होता है, नहीं जाओ। पता नहीं अब उसे जो क्या इसमें जलन है, क्या है नहीं है, वही कहेंगे। क्या कहते हैं वो कहते हैं ऐसे सेंटर खाली करवा दो। तो उसके बाद हम लोग एडमिशन किए यहाँ अनहद में। एडमिशन करने के बाद कढ़ाई भी सीख लिए और सिलाई भी सीख लिया। अभी जब देखी आ करके कि नहीं सिलाई का काम हो रहा है, कोई लड़की पेपर काट रही है, कोई लड़की मशीन चला रही है, कोई लड़की नाम लिखने के लिए बोर्ड पर बता रही है, वही उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं यहाँ नाच गाना नहीं होता, यहाँ काम की बात हो रही है, काम सिखाया जा रहा है। को तो ये मौका होना चाहिए कि मेरी भी बीवी जाके सीखे, मेरी भी बच्ची जाके वहाँ सीखे, ताकि हम आगे बढ़े और मेरी बेटी भी आगे कमा के खा सके। जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूँ कि नगर कान्हा प्रखंड में अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर एवं दवाई की काफी किल्लत है। विद्युत आपूर्ति कई महीनों पहले ठप कर दी गई। मनरेगा कार्यक्रम के तहत Today the women of Purnia and Araria are at the start of a new phase in their lives. They have taken the lead and shown the path to women who are still pinned down by patriarchal diktats. हर गांव में एक कमेटी बनाई है जो ये देखती है कि गांव में अगर सड़क नहीं है तो क्यों नहीं है, पानी नहीं है, तो वो सारे मुद्दों को ले जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना। हर सेंटर के अंदर एक एक टीम बना रहे हैं जिसको हम कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप का नाम दे रहे हैं। उस सेंटर को जो चलाने का काम है वो काम इस ग्रुप के ऊपर होगा। कि महिलाओं ने किस तरह से आके स्टेज पे बात की है, कैसे उन्होंने बाहर एक दुनिया को देखा है, तो ये एक शुरुआत है। क्या औरत का मतलब सिर्फ ये है इस समाज में कि वो घर में बच्चों को पाले और पति की सेवा करे, या औरत का कोई अपना स्वाभिमान भी? और वो तभी आ सकता है जब वो लिखना पढ़ना सीखे, उन औरतों को बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने उस चार दीवारी के अंदर बंद ना रहे। 3 महीने से अभी लिटरेसी की क्लास चला रही है। बहुत ही जरूरी है क्योंकि बैंक में अभी जाती है औरतें तो वहाँ पे साइन करना पड़ता है, और कहीं भी जाते हैं तो बिना साइन के कुछ नहीं होते। गांव से जुड़े हुए जो समस्या है उनका मुद्दा है, पीएचसी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, आंगनवाड़ी का मुद्दा है, तो कैसे हम पूरे उस जगह गांव के लोगों को, वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो उसके बारे में जानकारी रखें। One initiative of this kind has been proposed by Anhad, which involves the formation of a company that will function on a no-profit, no-loss basis. The products created by the women will be marketed through this company, and the profits so generated shall be distributed equally among them. कोई माल बना के बाहर भेजे या कोई काम करे, जूटे का हुआ, बेगे का हुआ, जैसे मशीन चलाने के लिए सीख गई है तो आराम से है कि वो भी बना लेगी, बैग सब बना लेगी। हाँ, हमारे यहाँ से जो है लड़की जा रही है ना, समस्ता में जा रही है, वहाँ काम सीखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो महिलाओं ने जो सीखा है, अगर उसको हम लोग उस इंटरेस्ट को सस्टेन नहीं कर पाए और उसको अगर हम लोग आगे किसी प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उनको लगेगा जो हमने सीखा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ये कि पूरा सशक्तिकरण का जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जिस समुदाय की हम बात कर रहे हैं उनके पास ना तो धन है और स्किल जो नहीं था वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समुदाय की हम बात कर रहे हैं उनका जो मार्केट में, उनका जो बाजार में उनका अपना जो शेयर है वो बहुत कम है। अभी हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में हम तकरीबन 1000 औरतों को ये ट्रेनिंग देके, और उनको हम ये चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो और एक पूरे उनके मार्केटिंग लिंकेजेस बने। उसके लिए एक अलग कंपनी का भी फॉर्मेशन हो रहा है जो सिर्फ यही काम करेगी, जिसमें वहाँ के लोग कुछ होंगे, कुछ अनहद की टीम के लोग उसमें शामिल होंगे। यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि कंपनी के पास उतना पैसा रहे जो सिर्फ उसको चलाने के लिए जरूरत है, बाकी जितना भी प्रॉफिट आता है वो सारा जो गांव में औरत काम कर रही है उसके पास जाएगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी एक अनहद की पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि वो आगे से जितने भी सरकारी इदारे हैं वहाँ के, वो उनको जितना जूट का मटेरियल चाहिए वो इन्हीं औरतों से खरीदेंगे, क्योंकि ये उनका भी काम है। आपकी कितनी भी सामग्री बनाया जा रहा है, उस सामग्री में बेचने में कहीं भी समस्या नहीं हो, उस पर भी हम लोग निश्चित रूप से ध्यान देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है तो वो टाइम पे बने, उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो। जो ऑर्डर बन के चला गया उसका पैसा वापस आया कि नहीं आया, पैसा पहुंच गया तो औरतों तक बटा कि नहीं बटा,
ये जो लीडरशिप हम जिन औरतों को देंगे, ये सारा काम उनका होगा। सेंटर जो 6 महीना से चल रहे हैं ना, तो अभी गांव की लड़की सब बोल रही है कि हम लोग घर में बैठ के क्या करते हैं, हम लोग भी सीख लेते हैं तो कमा के खाते ना। अभी सिलाई भी सीख लिए हैं और कढ़ाई भी सीख लिए हैं, और जो सिग्नेचर करने नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, तो सिग्नेचर करने भी सीख लिए। अपना गांव का नाम भी लिखने सीख लिए हैं, अपना जिला का नाम भी, अपना थाना का नाम भी, ऐसे भी सीख लिए हैं। सब बोले बहुत अच्छा काम है। पहले तो हम लोग खुद घुसाते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा है, सीख सकती है। ठीक है कि अगर वो सीख जाएगी तो कम से कम जो है अपने पेट, कपड़े, ये सब के लिए तो वो अपने खुद हो जाएंगे, उसके मालिक बन जाएगी। वो अपने अपने लड़के अपने अपने बच्चों को भेजिए संस्था में, जो कि वहाँ कुछ हुनर सीखने के बावजूद फिर वो अपनी ज़िंदगी अच्छा से निभाए। नहीं सर, क्यों? महिला अगर पर्दे में रहेगी तो क्या देखेगी, क्या जानेगी, क्या समझेगी? घर से जब तक ने बाहर निकलेगी, जैसे सेंटर आई तो कुछ समझी ना, सिलाई सीखी ना, कढ़ाई का काम सीखी ना, बात करने के लिए सीखी ना। हम भी पहले जब आए थे ना अनद में, हम भी मुझे बोलने की खुद ही शक्ति नहीं थी, मुझे बहुत डर लगते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतना बदल गए हैं। जिस तरह से अनद में काम होता है उसको देख के उसमें आत्मविश्वास दिया, मुझे बल दिया, यहाँ तक आज अनद की वजह से हम आए हैं। Anhad's initiative does not only seek to make these women who have taken the first step literate, it also aims to hone their leadership skills, which can lead to a greater involvement on their part in local affairs. However, it is essential that this initiative is taken forward and the ray of hope never flickers.